Students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to study chapter number 12 from a railway carriage. It is a poem which is composed by Robert Louis Stevenson. This poem is really interesting and realistic as well. I hope that sometimes somewhere you also have traveled by train and also have witnessed various types of beautiful sceneries peeping through the window of the carriage of the railway. So in the same manner, here in this poem, the poet Robert Louis Stevenson is also describing his experience of traveling by train and also seeing the beautiful sceneries and pictures through the window of the carriage. Before we read the poem, let's have some knowledge about the poet. And the poet is Robert Louis Stevenson, and he was born on 13 November 1850 and he died on 3rd December 1894. He was born at 8 Howard Place, Edinburgh, Scotland, and he was a Scottish writer, poet, essayist, and a travel writer. His famous works are Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Now let's get to know the meaning one by one of the poem. Here the first line of the poem is faster than fairies. I'll try to describe the meaning of each of the words through the picture. First line says that faster than fairies. Fairies means pariya. Here you can see the picture. It is a picture of a fairy. Fairy means pariya. Next line we have faster than witches. Here in the picture you can see the picture of witches. Witches means chudail, who do magics, black magics, and their speed are so fast. Bridges and houses. In the first picture you can see the bridges. Bridges means pull. Houses means ghar. Next up we have hedges and ditches. Hedges means boundary of fences. जो बाड़े बनाते हैं उसको hedges बोलते हैं. Ditches means गड्ढे. Here in the second picture you can see the picture of ditches. Next line we have charging along like troops in a battle. Here it means the soldiers who came forward to fight a battle. Means सैनिक जो कि युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं. Next line we have all through the meadows the horses. Means घास के मैदान में जो घोड़े चरते हैं, as like same in this picture. I'm describing the words through this picture so that when we get into the reading of the poem you can imagine all these things in your mind and understand the poem thoroughly. Okay? And cattles. Cattles means maveshi, janwar. Here you can see in the picture. Next line we have all of the sides of hill and plain. Hill means mountain, small mountains, and plain means maidani area, flatlands. Okay? Next line we have fly as thick as driving rain. Here is a picture of thick rain. Okay. Next line we have in the wink of an eye painted stations whistle by. Here is a picture of a station. Okay. Wink of an eye means palak jhapakte hi. Here is a child who clambers and scrambles all by himself gathering brambles. In the picture you can see that there is a child who is collecting or gathering all the berries. Okay.
Next line we have, here is a tramp who stands and gazes. Tramp means as like any beggar, जिसका कोई घर नहीं होता है और जो फकीर होता है, जो पैसे मांगता है सड़कों पे, इसी तरह से भटकता रहता है. Here the first picture is from a painting and the second picture is real picture. Okay, and it is a picture of a tramp. जो बेघर होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है, जो भटकते हैं, उन्हें हम ट्रैम्प बोलते हैं. नेक्स्ट लाइन वी हैव, एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. दीज आर द फ्लावर्स ऑफ डेजीज. स्ट्रिंग मीन्स बुनना, एज लाइक पिरोना, किसी भी धागे में. नेक्स्ट लाइन वी हैव, हियर इज ए कार्ट रन अवे ऑन द रोड लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड. कार्ट मीन्स गाड़ी, एंड लंपिंग जो उबड़ खाबड़ होकर के, हिल करके, उचक कर चलती हैं गाड़ियां जब उसमें ओवरलोड होता है. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज ए कार्ट एंड इट इज लंपिंग with, means it is overloaded with the stuff and there is a man. Okay, lastly we have, and here is a mill and there is a water, each a glimpse and gone forever. Here is a picture of a mill. Now students, let's get into the reading of this poem and see the explanation. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. As I told you earlier, in this poem, the poet is describing his experience of traveling by train. यहाँ पे जो poet है वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करते हुए कहता है, अपनी ट्रेन जर्नी को, कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजुअली जो फेरीज होती हैं, जो परियां होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है मूव करने की, वो बहुत फास्ट होती है. आपने अगर देखा होगा मूवीज़ में या कार्टून्स में, तो जो एंजल्स होती हैं, जो परियां होती हैं, वो बहुत तेज़ी से एक जगह पे आपको अपेयर होती हैं, मीन्स वहाँ पे दिखाई देती हैं, फिर अगले ही पल वहाँ से वो गायब हो जाती हैं. इसी तरह से जो विचेस होती हैं, मीन्स जो चुड़ैलें होती हैं, जो काला जादू करती हैं, उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है. वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेज़, बहुत ही फास्ट स्पीड में चली जाती हैं. तो इसी तरह से पोइट कहता है कि जो उसके ट्रेन की जो स्पीड है वो फेरीज यानी परियों से, और जो विचेस है यानी कि चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज़ है. मीन्स उसकी जो ट्रेन है वो इतनी फास्ट चल रही है कि वो परियों की चाल से भी ज़्यादा, और जो चुड़ैलें हैं उसकी चाल से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है. तो यहाँ पे वो ट्रेन की जो स्पीड है उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? परियों से और चुड़ैलों से. ओके, इन द सेकेंड लाइन, ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस. वो कहता है कि जो उसकी ट्रेन है और उसके कंपार्टमेंट से, कंपार्टमेंट मीन्स आपने देखे होंगे जो कोचेस लगे होते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, उनके जो विंडोज़ होते हैं उसमें से झांकते हुए जब बाहर देखता है तो पोइट को नज़र आता है कहीं पे ब्रिजेस, कहीं पे हाउसेस. ब्रिजेस मीन्स कहीं पे पुल नज़र आता है उसको, फिर कहीं पे घर दिखाई देते हैं, और हेजेस दिखाई देते हैं. हेजेस आई टोल्ड यू अर्लियर मीन्स बाड़े, फेंसेस. और कहीं पे फिर उसको गड्ढे नज़र आते हैं, बड़े बड़े डिचेस नज़र आते हैं. तो ये सारी जो सीनरीज हैं उसको कहाँ से दिखाई देती हैं? वो जब ट्रेन पे जर्नी कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें अपने कंपार्टमेंट यानी कि रेलवे जो कैरिज होता है उसकी विंडो से वो देख रहा होता है. फर्दर सेज दैट एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल. पोएट कहता है कि उसकी जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सोल्जर्स किसी युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं. वो कहता है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि वो सारे दृश्यों को पीछे छोड़ती हुई जा रही है. जैसे कि जो हेजेस थे, जो ब्रिजेस थे, जो हाउसेस थे, जो डिचेस थे, और साथ ही साथ वो देखता है कि
जो मीडोज हैं, बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं, उस पे हॉर्सेस, कैटल मीन्स मवेशी जानवर, तो घोड़े और जो जानवर हैं मवेशी वो सारे चल रहे होते हैं और ये सारे दृश्य भी वो पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है अपनी ट्रेन के साथ। ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि ये एक एक करके सारे जो उसके दृश्य हैं वो पास होते जा रहे हैं, क्रॉस करते जा रहे हैं। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। वो कहता है कि ये सारे दृश्य, जो पहाड़ जो देखता है, जो प्लेन देखता है, वो जो मैदान देखता है, वो इतनी तेज़ी से ट्रेन क्रॉस करती है उन सबको कि ऐसा लगता है जब कोई तूफान आता है और उसमें जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो कितनी तेज़ी से गायब हो जाती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से उसकी जो ट्रेन है वो इतनी फास्ट चल रही है कि ये सारे दृश्य जो पहाड़ों के हैं, जो मैदानी इलाकों के हैं, ये सारे एक एक करके बिल्कुल डिसअपेयर हो जा रहे हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विजिल बाय। पोएट कहता है कि थोड़ी देर में एक पलक झपकते ही बिल्कुल स्टेशन आ जाता है। मीन्स स्टेशन पे वो देखता है चीज़ों को कि सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी तेज़ी से जो ट्रेन है वो चल रही है कि जो स्टेशन आते हैं वो उसमें जो भी स्टॉप होते हैं, जैसे कोई शॉप है या कुछ भी वहाँ पे जो स्टफ़ है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पेंटेड है। मीन्स कोई चीज़ स्टिल जब होती, स्थिर होती है और वो बिल्कुल पेंटिंग के जैसी लगती है, क्योंकि उसकी जो ट्रेन की जो स्पीड है इतनी फास्ट है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो स्टेशन है वो पलक झपकते ही आ गया, सीटी के बजते ही, ट्रेन के सीटी के बजते ही वो स्टेशन आ जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि ऐसा लगता है कि वो जो स्टेशन है वो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टिल है, रुकी हुई है। He further says, here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Brambles means blackberries. वो कहता है कि ट्रेन से जर्नी करते हुए देखता है कि वहाँ पे एक चाइल्ड है और वो बहुत ही मुश्किलों से किसी पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्टीप ग्राउंड मीन्स उबड़ खाबड़ जो रास्ता है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ उन पहाड़ियों पे वो चढ़ कर के जो जामुन है उनको इकट्ठा कर रहा है। Here is a tramp who stands and gazes and there is the green for stringing the daisies। वो कहता है कि वहीं पे थोड़ी देर बाद वो एक ट्रैम को देखता है, जो बेघर एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, और वो बिल्कुल खड़ा होके स्टैंड करके गेज कर रहा होता है, मीन स्टेयर कर रहा होता है उसकी ट्रेन को। इतनी तेज़ी से ट्रेन वहाँ से गुजर जाती है। वो देखता है कि एक वहाँ पे ट्रैम्प है, एक बेघर इंसान है जो कि उस ट्रेन को गेज कर रहा है, स्टेयर कर रहा है। और वो कहता है कि जब उसकी ट्रेन आगे बढ़ती है तो वहीं पे एक विलेज है, वहाँ पे कॉमन जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो डेजीज़ के फूलों से माले पिरो रही होती हैं, उनको जो गार्लैंड है वो बना रही होती हैं डेजीज़ के फ्लावर से। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड। वो कहता है कि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है वो देखता है कि वहीं पे एक गाड़ी है और जो कि रोड पे चल रही है। इट इज़ लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। और उस गाड़ी पे इतना ओवरलोड है कि वो बिल्कुल लंप कर रही है, मीन्स बिल्कुल उचक उचक के चल रही है, क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड है, सामान भरा हुआ है। एंड देयर इज़ अ मैन ऑल्सो and here is a mill and there is a river, each glimpsed and gone forever. Lastly, he says that he witnessed a mill also and a river also, and they gone in a glimpse. पलक झपकते ही वो दृश्य उसकी आंखों से गायब हो जाता है और ये इतना फास्ट होता है कि वो उसको अभी विटनेस भी नहीं कर पाता है। दैट इट गॉन फॉरएवर, और हमेशा के लिए ये उसके आंखों के सामने से ये जो व्यू है वो पास आउट हो जाता है। सो हेयर ही डिस्क्राइब्स हिज जर्नी बाय ट्रेन ब्यूटिफुली एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट because everyone loves traveling by train and gets fascinated while listening to the whistle of the train. I'll see you next class, students. Thank you.